Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video today we are going to discuss about the UGC NET exam, some very important things which I have to tell you about the type of questions that are asked in this exam and how you can save your time by solving the questions which should be attempted first. But before we start with our discussion, don't forget to subscribe to Legal Bee. Legal Bee comes up with various kind of exam preparation content, strategic preparation content and also the series that is going on at Legal Bee. अगर आपने अभी तक check नहीं किया है, do check out all the playlists of all the series that we are providing at Legal Bee, that is about mock test questions, landmark judgments which we provide every 15 days and whatnot. इस सब से आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होती है एंड यू स्टे अपडेटेड विद ऑल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स दैट कम अप आफ्टर यू हैव completed law, the opportunities that are coming in your hand, that also we try to update you very soon at Legal Bee. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं डू राइट टू अस ऑन hello@iexamb.com या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. यू कैन कॉल ऑन 9205524028 एज वेल. Visit the website for more details. UGC NET examination, which is going to be conducted in June only 2023. So we'll be discussing the type of questions that you must attempt first. पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोथ इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. मीन्स कौन से टाइप के क्वेश्चंस है. कुछ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं. तो आपको पहले तो उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करना होगा. दैट इज द बेस्ट वे यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड iExamB has come up with free mock tests for the same. I would suggest you all to go and visit the website and attempt the mock tests immediately. This will help you understand the exam pattern and will also make you exam ready. These are the free mock tests available. So www.iexamb.com पर जाकर चेक कर लीजिए. Let us start with the type of questions that are asked in this examination. I'll tell you the categories of questions that are asked for both the papers. Match the following questions बहुत ही typical type of questions है जो UGC NET examination में पूछे जाते हैं. Assertion and reason type of questions are also very typical which are asked. And assertion and reason questions को आप अगर practice करते हैं तो आप इसके लिए काफ़ी अच्छे से prepare कर सकते हैं. I would suggest कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन questions को practice कीजिए, especially for paper 1. पेपर 2 में कैसा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इफ़ यू आर नोइंग द लॉ देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेल एंड वेरी क्विकली. बट इफ यू आर नॉट नोइंग द लॉ देन असर्शन रीजन बिकम्स डिफिकल्ट इन लॉ पेपर एज वेल. एंड पेपर 1 के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस करें. एक टिपिकल पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का. एक बार आपको उसका हैंग आ गया तो आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में एंड आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस फिक्स होता है. कॉम्प्रिहेंशन तो एक यूनिट ही है पेपर 1 में, तो वो तो आपको कंपलसरी करना ही है. एंड कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. The passage is there in front of you, so the answer is there in front of you. If you are able to find out the context of that question and the passage, then very easily you can do this. But इसके लिए भी आपको practice एक solution है जो आप comprehension questions को easily solve कर सकते हैं. And अगर हम law की बात करें, so for law what you can do if you are thoroughly prepared with the topic, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बिना पैसेज पढ़े भी पहले इसको सॉल्व करके बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं. ये भी एक टाइम सेविंग टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ का कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है लॉ में एंड दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू रीड द पैसेज, बट इफ यू जस्ट डायरेक्टली रीड द क्वेश्चन एंड सपोज आपको उसका आंसर ऑलरेडी पता है बिकॉज आपने इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई अच्छे से की है, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी जानते हैं, तो आप क्विकली पैसेज में एक लुक दे सकते हैं और अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. अगर वो आपको आंसर वहाँ पे मिल जाता है तो आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है एंड आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर मार्क्स fast. Data interpretation is a type of question which comes compulsorily, and what is the problem with this question? Actually it consumes a lot of time, so that I will be soon telling you that what questions you should give priority and what you should not. अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो फिर भी आपका हो जाता है, लेकिन कभी कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर सही नहीं आता है और हम काफ़ी टाइम इन क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट कर देते हैं. Now books, author name questions are also very famous, especially jurisprudence, international law. यहाँ से इस तरीके के questions definitely आते ही हैं. So prepare according to that only. Section based questions, IPC, IPR, IT Act, इस तरीके के जो topics हैं यहाँ से section
और उस सेक्शन के आगे डेफिनेशन को या तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दिया जाता है या फिर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है. अब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इफ यू नो देम एंड यू कैन सॉल्व देम इजीली. देन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, आईपीसी, आईपीआर, कॉन्ट्रैक्ट्स भी है. तो ये सब टॉपिक्स में से केस लॉज पूछे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि केस लॉज पूछे जाएंगे. तो केस लॉज आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज केस लॉज को कई बार क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ईयर्स का भी पता होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज़ द थिंग. जैसे कि कौन सा केस पहले आया है, कौन सा केस बाद में आया है, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड यू शुड बी एबल टू अरेंज दैट इन द राइट क्रोनोलॉजी. एंड इवन जजेस के नेम्स भी आजकल पूछे जा रहे हैं लॉ में. सो लॉ की प्रेपरेशन उस हिसाब से आपकी थारोली की जानी चाहिए. एग्जाम पैटर्न एक बार क्विकली देख लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड विच क्वेश्चन वाई यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट. देन यू विल बी एबल टू justify that 300 questions you will be having in your hand, and the paper is in online mode. तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके पास एक ही टाइम में आ जाता है. तो ये एक एडवांटेज है, इसको एडवांटेज की तरह यूज कीजिए. यू आर हैविंग paper 1 and paper 2 in front of you. It is your choice that you want to pick paper 2 1 or first or paper 1 first, या फिर आपको मिक्स पैटर्न में सॉल्व करना है, ये आपका चॉइस है. तो इस तरीके से आपको आपका पेपर प्लान करना होगा. 180 मिनट्स आपके पास ओवरऑल है, देर इज नो ब्रेक. तो आपको इन 300 क्वेश्चंस में से मैं बोलूँगी, नॉट फ्रॉम 200 और फ्रॉम 100, पूरे 300 क्वेश्चंस में से आपके सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज आपको पता होनी चाहिए. और अगर आपको वो पता है तो आप इस पेपर को अच्छे से प्लान करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. You can start with law paper. Time saving questions first. This is what is the best technique that you can apply for such kind of examinations. Reason being that these examinations you don't have to top, you have to qualify these examinations. So अगर आपकी strategy सही होती है तो आप इन एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेते हैं. लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो सकता. आप कितना भी अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नॉट मैनेज्ड योर टाइम वेल. सो अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू द टाइम सेविंग क्वेश्चंस फर्स्ट. सो विच आर द टाइम सेविंग क्वेश्चंस? आई वुड सजेस्ट अटेम्प्ट द लॉ सेक्शन फर्स्ट. Straight away go to the paper 2. Why I am telling you to do this? The reason that law is having a lot of weightage. Second, law is not having any calculation based questions, or it is not having any reasoning type of questions. The questions are very direct. These are based on your knowledge completely. अगर आपको ये आता है तो आपको आता है. कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है उसमें, लेकिन मैंने आपको उसके लिए भी ट्रिक बताती है लॉ के लिए. अगर सपोज उस पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता है, उस पर एक नज़र मार लीजिए. इफ़ यू ऑलरेडी नो द आंसर तो उसको वेरीफाई कर लीजिए पैसेज में. जल्दी से लॉ का पेपर पहले अटेम्प्ट करके ख़त्म कर दीजिए. डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट मोमेंट. क्योंकि क्या हो जाता है, आप पेपर 1 में पूरा टाइम लगा देते हो और फिर 1 घंटा बचता है आपके पास 100 क्वेश्चन करने के लिए, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस पेपर. एंड देन यू आर नॉट एबल टू डू द लॉ सेक्शन ऑल्सो वेल, विच इज़ योर सब्जेक्ट, विच इज़ योर एक्सपर्टीज. और उसमें भी आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते और आपका एग्जामिनेशन फिर क्लियर नहीं हो सकता. सो अटेम्प्ट द लॉ सेक्शन फर्स्ट. देन द डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन कार्व आउट, जैसे कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स है, स्टेटमेंट ऑफ जूरिस्ट्स है, मैच द फॉलोइंग भी है. मैच द फॉलोइंग क्यों, मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगी. डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे हो जाता है, आपको पता है तो पता है, आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, एंड इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो. उस पर ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है. डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन. सो इफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन यू आर एबल टू मेक इट आउट दैट वेदर यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन और नॉट. अगर सपोज कोई सेक्शन नंबर पूछा है, आपको वो सेक्शन नंबर अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. सो यू कैन मेक द डिसीजन एंड यू कैन क्विकली मूव अहेड ऑफ दैट क्वेश्चन. That's why I am telling you to do these direct questions, theory based questions first. पेपर 1 में भी आप जब आते हो, पेपर 2 होने के बाद, पेपर 1 में you can do the units that are completely theory based. The questions that are coming from communication unit, from ICT, जैसे simple full form पूछ लिया है. आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. यही मैं आपको बार बार बोलूँगी, इतना सिंपल ध्यान में रखो. एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है. सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो. Why? Because you know or you don't know, you cannot waste time. You can quickly make a decision and move ahead. What will happen by doing the time saving questions first? First of all, your speed will increase. Second of all, your confidence will boost up. Why? Because you have done the
all the things that you find that you were knowing and which were easy to do initially, वो आपने कर लिया है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है पेपर के वक्त वो कम हो जाता है. मैं कंप्लीटली जा चुका है ऐसा तो नहीं कह सकती, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत रिलैक्स मूड में एग्जाम दे पाते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एग्जाम स्ट्रेस होता है. सो दिस इज समथिंग विच विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पेपर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेपर, एंड योर कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट. And you have to boost up your confidence when you are giving the paper and not lose it. So do the things which you know first, which will save your time, and then your confidence will automatically go up, and then you start with the questions or the topics which you know that you cannot do, or there are less chances that you will score well in that. Then you can go for that in the last time. अगर होता है अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, तुक्का मारना है. वो तो हम लोग करने ही वाले, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं इस पेपर में. सो लेंदी क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन. पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन है, वो काफ़ी कई बार टफ भी आ जाता है. Then mathematical questions are there. What are the mathematical questions? In that reasoning questions also I have included in the lengthy one. जैसे कि series based questions हो जाते हैं, alphabetical series, number series. तो ये सारी questions में आपको काफ़ी सारा logic और दिमाग लगाना होता है. So this becomes lengthy and time consuming. अगर आपकी अच्छी practice है तो this also becomes fast. And अगर ऐसा है तो obviously you will score well in the नेट एग्जामिनेशन. बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका इस पर हैंग नहीं आ पाता है, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए. DI, अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग है तो भी इट्स वेल एंड गुड, यू कैन सॉल्व इट इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो. एंड अगर वो वैसे ही वीक है, आपको पता है कि इसमें मेरा टाइम चला जाएगा बट मुझे मिलेगा कुछ भी नहीं, आई वोंट बी एबल टू स्कोर वेल, सो फिर उस पर पहले क्यों टाइम डालना है और अपना मोरल डाउन करना है. डू इट इन द एंड, गिव योर ट्राई. एज मच द टाइम यू आर हैविंग यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट, बट नॉट एक्स्ट्रा टाइम देन दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टाइम भी पूरा उसमें डाल दिया और आपको मिला कुछ भी नहीं. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, सो DI यू कैन सॉल्व इन द एंड. Let us discuss some type of questions. The number of sustainable development goals. अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से है, पेपर 1 से. ये क्वेश्चन कितना ईजी है, विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व इट एक्चुअली इफ यू नो द आंसर. There are 17 sustainable development goals. So this is something which you can solve in seconds and save a lot of time. So do these questions in the starting, not in the ending. CBCS is what? What is the full form of CBCS? Choice-based credit system, credit-based choice scores, criteria-based choice system, criteria-based creditable scores. अब अगर आपको ये पता है, इधर देखना ही नहीं है, if you know CBCS क्या है तो डायरेक्टली आंसर ढूंढना है एंड उसको सॉल्व कर देना है. कितने सेकेंड्स लगे? हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ये भी पेपर 1 से लिया है मैंने. सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज वर्सेस माई स्पेस, दिस इज अ वेरी लीडिंग केस ऑन कॉपीराइट एक्ट. ये IPR से पूछा गया है. अब ये केस लॉ है, केस लॉ पूछा है, लेकिन यहाँ पे पूछा आपको एक्चुअली सेक्शन है, दैट इट इज डीलिंग विद विच सेक्शन ऑफ द एक्ट. सो इफ यू हैव स्टडीड दिस यू नो इट. इफ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर देन ऑब्वियसली you don't have to waste a lot of time on that. With whatever knowledge you have in your mind, you have to apply that and you have to solve the question and move ahead. So this section actually, section 51 deals with Copyright Act. 51A के बारे में इस case law में basically discuss किया गया है. It was held in this famous case law. This is landmark one, so I would suggest all of you to do this. MySpace is liable for copyright infringement despite it having shown no knowledge about specific instances of infringement, that it removed infringing content upon the complaints, and that Super Cassettes had failed to submit songs to MySpace Song ID database. इस केस के आप समरी और डिटेल में देख सकते हो कि इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, as it is important from exam point of view also. Arrange chronologically the following cases decided by Supreme Court year wise. ऐसे questions बहुत आते हैं, so please prepare all the landmark cases, all the recent judgments and year wise. Okay, because अगर chronology based question आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपका टाइम जा सकता है. So what you have to do, इसमें से अगर आपको पता है उनके ईयर्स तो आप इजीली इनको अरेंज कर सकते हो. एंड ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, बिकॉज नेट की स्ट्रैटेजी ही यही है कि उनको थोड़े लेंदी क्वेश्चंस डालने होते हैं. तो आपको उस स्ट्रैटेजी को कैसे क्रैक करना है वो मैंने आपको बता दिया है. सो इसमें करेक्ट आंसर एक्चुअली है D, 4, 3, 2, 1 and 5. So let us check once the cases. First came Kharak Singh versus State of UP. Then came Satwant Singh versus Assistant Passport Officer. Then came Francis Correll, Union Territory of Delhi. Then Olga Tellis case. And then lastly the National Legal Services Authority versus Union of India. नालसा वाला जो केस है ये सबसे recent है.
दिस इज द क्रोनोलॉजी. देन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने क्यों इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, एक तो ये आते ही है 100%. एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार व्हाट हैपेंस, वी नो two questions out, two things out of it, and rest two we don't know. And what happens in the options, if you will see, you are able to make it out that things are repeated and only some things are changed. तो उसमें कई बार हम स्मार्ट ट्रिक अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है. जैसे हमें पता है उसमें से दो चीज़ें कंफर्म पता है, दो चीज़ें कंफर्म नहीं पता है, तो जो चीज़ें हमें पता है ट्राई टू ट्रेस दैट इन द ऑप्शंस. डोंट रीड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. जैसे 4 के 4 पूरे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके ऑप्शन में 2 भी मैच हो जाते हैं, जैसे आपको बी का पता है कि आंसर 2 है सपोज, ओके, एंड सी का पता है आपको कि आंसर 4 है, तो आपको बस इतना देखना है कि बी के लिए 2 कहाँ है, सी के लिए 4 कहाँ है. बाकी ए और डी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट विल सेव योर टाइम. ऐसे स्मार्ट वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है. सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिखता लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन लेट मी टेल यू ये भी टाइम सेविंग क्वेश्चन हो सकता है. ओके. एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू टेक हियर, जिस स्पेशली मैंने जूरिस्प्रूडेंस से ही उठाया है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एंड इंटरनेशनल लॉ से. मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय होम. इट्स अ वेरी स्टेटमेंट एक्चुअली. प्रोग्रेसिव सोसाइटीज का मूवमेंट हुआ है. हिदरटू ये वर्ड देखकर ही आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये किसकी लैंग्वेज है. दिस इज हिस्टोरिकल स्कूल philosopher Henry Mann. Henry Mann was actually a philosopher who was quite old and ancient one, so his language is also like that. ऐसे कुछ ट्रिक्स बना लीजिए इन स्टेटमेंट्स को याद रखने के लिए. अब ये देखते से अगर आपको पता है तो आपको पता है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है एंड क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड्स आपने सॉल्व कर लिया. मैन इज द करेक्ट आंसर. So this is how you have to make a strategy for yourself, for your preparation, and as well for solving the questions. So for that you should know the type of questions that are asked so that you can prepare your topics in that direction. So this is what I had to tell you about the paper, which is really very important. Don't miss this kind of videos that we keep on coming up at Legal B. And do solve the mock test as well. If you have any queries, reach out to us directly in the comment section, or you can email us, call on the number, and prepare 50% faster with iExamB. Thank you everybody. Have a good day.